वाह। मेक होस्ट, ओके फाइन, ठीक है। यस अंकित, सर। नाउ यू आर होस्ट, नाउ यू आर द होस्ट, थैंक नाउ यू प्लीज सर। स्टार्ट, टेक द चार्ज। No, Adnan sir, it's your student. अब बाकी लोग माइक ऑफ कीजिए, दुर्गेश माइक ऑफ करो। मेटल किंग करके डालना, मेटल किंग, अनिल अग्रवाल मेटल किंग। ओके सर। स्टोरी ऑफ अनिल अग्रवाल जी मेटल किंग। No student है साथ में। इसमें भारी नहीं है। सर वेदांता रिसोर्स पीएलसी सर। तो इनके बारे में ना हमको फ्रॉम स्क्रैप, ये वाला देखो सेकंड वाला, फ्रॉम स्क्रैप डीलर टू मेटल किंग। ओके सर। सर ये तो हिंदी में है। हाँ तो हिंदी में पढ़ो, चलो हिंदी में चालू हो जाओ, लेकिन थोड़ा तो कुछ हिंदी में ही ये सर। रहे। नहीं थोड़ा ये सर और कुछ लंबी स्टोरी। सर नहीं बैक दूसरा जाओ, स्लाइड देखते हैं सर। बैक जाओ। ऐसा लिखो ना, स्टोरी अबाउट मेटल किंग अनिल अग्रवाल, स्टोरी, तो उसमें पूरा आएगा, स्टोरी अबाउट। यस सर। हाउ अ स्मॉल ट्रेडर बिकेम अ मेटल किंग। क्लिक करो। यस सर। Anil Agrawal, 52, dreams of begin the best mining and metal maker in the world. To get there, he thinks 3 to 5 years is a reasonable time. Surprised, those who know him are not. Agrawal, executive chairman and founder of the London Stock Exchange, listed Vedanta Resources in growing at a very fast pace. At a very fast pace, from rupees 15 crore, rupees 150 million in 1985 to nearly rupees 20,000 crore, rupees 200 billion in a 9-month year to 2006. Agrawal is a classic story of a small trader becoming metal king. The secret, he say, lies in believing in himself and in the country's potential. Also, I am fortunate to have wonderful people with me. Without them, it would not have been possible for me to reach this level. He told Business Standard after announcing the acquisition of CSGO on Tuesday. Agrawal came to Mumbai when he was 19 after completing his matriculation matric from Patna in 1975. He was so impressed with the grand edifice of the Oberoi that he decided to lodge himself there as he set out to pursue his career as a scrap trader. But due to his poor command over English, he had to seek the help of friend to book himself in the hostel. Once there, he would eat out so the cost would not exceed the daily rent of rupees 200. Today his annual salary is over rupees 4.5 crore, rupees 45 million, not to mention his stock option and shareholding he owns at home in Mayfair, London, drives a Bentley, wears the most expensive suit, and has the best staff in the industry working for him. But all this has not changed him. I am a proud Bihari, he says. But I have done nothing for Bihar and Jharkhand. In fact, this was the added देखो जैसे attraction. अंकित Yes, sir. जैसे तुम एक चीज नोटिस करो कि हम जितना भी खोजते हैं वो सब बिहार का होता है ना। जी सर। तुम लोग जो ये है खोजते हो सर। बिहार के बाहर का हो जाता है। हमको पहले Yes, sir. बिहार को पहले कवर करो ना, पहले बिहार को कवर करो, उसके बाद फिर बाहर चलते हैं।
क्लियर है यस ना? सर, यस सर, समझ में आ गया सर। प्रीवियस क्लास में जो IIM अहमदाबाद के एल्यूमिनाई थे, वो रिक्शा वाला, वो हाँ, वो सर दोनों IIM। उस पे काम, यस सर। उस पे भी, उन यस दोनों सर। पे भी काम करना है। यस ठीक सर। है, अब चूंकि ठीक है, वो दो नाम तो हो ही गया, अब ये नाम एक्चुअली मिस हो जाता। ठीक है, तो पहले इसको करवाया हमने। ठीक यस है, सर। बाकी इरफान और कौशलेंद्र तो है ही। पहले बिहार को कवर करना है, ऐसे समझो। और वो बाकी तो बिहार पे फिर फोकस करके उसको ग्रोथ फैलाने का वो उसके मुहैया में लगे हुए थे, कौन वही ना कौन सर? कौन लोग हैं जो अभी, मतलब बिहार जो चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। यस ऐसा सर। थोड़ा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी ने या गवर्नमेंट ने कर दिया है, ऐसा थोड़ा नहीं है। तो ये सब लोगों को जानिए। ठीक है, ठीक, आगे पढ़िए। In fact, this was the added attraction for my interest in Sisa Goa, which has a prospective license in Jharkhand. He say an ambitious Agrawal wants to have a production capacity of 1 million tons each in his three areas of business: copper, aluminum, and zinc, and wants to set up a 10,000 megawatt power plant. We are investing $13 billion to achieve the target, and and are halfway thought to it, he say. It was the थ्रू इट, ambition. थ्रू इट, Sorry sir. Yes sir. हाफ वे थ्रू Through इट। to it. एक बार पहले बता दें कि मतलब अनिल अग्रवाल जी स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मतलब समझते हो ना? Yes sir, कबाड़ी। कूड़ा कचरा. हाँ, तो कबाड़ी से नाउ उसमें करते 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 नाउ ही इज अ Steel मेटल maker. किंग नाउ। हाँ, मेटल किंग। Yes sir. तो दो किंग हो गए बाबू, एक तो किंग महेंद्र हो गए और दूसरे Yes sir. मेटल किंग हो गए। ठीक है, वो तो बिहार से खाली किंग ही है। सर हाँ, दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है ना, एक तो दोनों है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के होते हैं. लेकिन दोनों दोनों अपने अपने फील्ड में किंग है बाबू। किंग. यस सर. एंड बोथ बोथ आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिमोट प्लेस। कोई ऐसा बहुत दौलतमंद घर से नहीं आ रहे। बस दिमाग में है, करना है तो करना है, खत्म हो गई बात। यस सर. ठीक, बढ़िया आगे। It was this ambition that drove him to launch a hostile takeover bid to acquire Indian aluminum indal from the American giant Alcan, which failed. Instead, he bought the Elling Madras Aluminum. Later, he required एल्यूमिनियम, Bharat एल्यूमिनियम। Aluminum. Yes, sir. Later, he required Bharat Aluminium and Hindustan Zinc from the government and purchased India Foils from the Khaitan Group of Kolkata. In all these cases, the Birla Group was one of the contenders. On his part, Agrawal asserts of the theory of rivalry with the Birla Group. There is enough water in the sea of every fish, he says. As of now, the uncrowned now furious king of the country is making his foray in the furious market. Sisa Goa has a reserve of 2,207 million tons of iron ore and produce 10 million tons a year, and has mines in Odisha, Karnataka, and Goa. He differs with those who believe that he paid a hefty premium. Hefty premium मतलब? बहुत ज्यादा पैसा दिया। प्रीमियम मतलब पैसा Yes, देना। sir. ठीक है। Yes, sir. The premium of 16% is actually cheap compared to the international instances where the acquired pay 40 to 50% more than the market price. He say with Sisa Goa in his flood, he seek to be an integrated metal junction with an interest in copper, aluminum, zinc, lead, and iron ore. As from failure, he has had his acquisition of India. First, he proved to be unwise. The company is still building, but he is candid his confusion. India Fuels contributes a small portion to a group's overall turnover. We may disinvest our interest. We when we get the right price. He say
Iron ore exporters, however, are a happy lot with the company coming under the Vedanta fold. They feel they now have a strong man to fight his steel lobby in the corridor of policy making. चलिए ठीक है, स्टॉप शेयर कीजिए और हमको तमसील फातिमा को होस्ट बनाइए। Okay, sir. सर अभी पूरे देश में जो RIL है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि सर वो अपने फंडिंग से सप्लाई करता होगा, कुछ ना कुछ तो सर इसमें गवर्नमेंट का भी होगा ही हाथ। अभी सब बात ना उधर RIL से पूछा करो यार, ये सवाल हमसे मत पूछा करो, बहुत उल्टा पुल्टा जवाब मिल देगी। सर फिर भी आपके पास ठीक सर है। कुछ ना कुछ जवाब होगा ही नहीं, क्योंकि सर RIL जो है पूरे देश में प्लांट बना रहा है, तो कहीं ना कहीं सर उसका गवर्नमेंट में पैसा तो नहीं होगा कि अपने पैसे से RIL अब बना रहा होगा। वो तो आप लोग सर्च कीजिए इस पे, यू बेटर फाइंड इट आउट। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए एक डिस्कशन हम लोग का हो गया अनिल अग्रवाल जी पे, ये सब शॉर्ट डिस्कशन है ताकि याद हो जाए। ठीक है, पिछले क्लास में ये बताइए कि किसने तैयार किया है कुछ, हमने कुछ पिछले क्लास में काम दिया था किसी को क्या कि इस पे बनाने के लिए? अरे क्या फिलहाल तो नहीं मिला था सर, दुर्गेश को ही हाँ? मिला, दुर्गेश बोला था सर JRD टाटा पे से। नहीं तो नहीं, अब अनिल अग्रवाल, अरे ये भाई क्या नाम है, पर नैना को मिला था सर। अरे ये दोनों इरफान एंड कौशलेंद्र, इस पे नैना भारती को मिला था सर। नहीं ना भारती को, अच्छा Yes. खैर ठीक है। तो अब ये जो है नाम है अनिल अग्रवाल साहब का, इसका PPT कौन बनाएगा? सबका तो ऑफ ही है, तो वाह मुश्किल होता भाई क्लास लेना। एक तो कंडीशन है कि क्लास लीजिए, उसके बाद से सबका कैमरा ही ऑफ है। सर आप सेलेक्ट कीजिए इस बार कौन PPT बनाएगा और कौन एक्सप्लेन करेगा। ना हम करेंगे तब तो वो क्लास ही नहीं करेगा ना, तो तब तो भाई वो ना है कि भाई कोई कोई कर दे। नो, जस्ट लाइक अ बेगर द टीचर हैज टू, सर कोई फॉर्मेलिटी कर सर, दे, यहाँ PPT बनाना है, हो गया बस। कोई कोई कर दे। खैर इसमें जैसे लिस्ट निकालना है ये अंकित, ठीक है, यस सर। of the of the all the people who made Bihar, who made the contribution in Bihar with respect to GDP, with respect to employment, with respect to n number of things। ठीक है, ये started सर with तो एक something। काम कर सकते हैं सर कि हम उस उन आदमी का हम वो डाटा निकालेंगे जो बिहार के लिए अपना हाँ कंट्रीब्यूशन दिए और किस तरह का कंट्रीब्यूशन दिए, वो उनका हाँ, लिस्ट निकाल सकते हैं। भले ही छोटा बने सर, लेकिन एज नहीं मेन छोटा ही, पॉइंट मैं उसका। उसमें Yes, sir. बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, रिफॉर्मर भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते Yes, हैं, वो सब कॉम्बिनेशन है। yes, ठीक ना, sir. वो Yes, sir. तो फिर आपको पता चलेगा कि ओके फाइन। अरे अपने बारे में जानोगे तब ना तुम्हारी शख्सियत मजबूत होगी। Yes, तुम्हारे sir. तुम्हारे बैच का बिहार के स्टूडेंट का पर्सनालिटी, ठीक है, इतना वीक क्यों है? इतना वीक इसलिए है क्योंकि आप अपने बारे में नहीं जानते हैं। सिंपल, आपको पता चल जाएगा अरे मेरे ये लोग हैं, मेरे ये लोग हैं, मेरे ये लोग हैं, अपने आप मजबूत हो जाइएगा। ठीक है ना, Yes, sir. बस यही तो बात है। बन जाएगा, बनाऊंगा सर मैं उस पे सर। एग्जैक्टली, इसको कीजिएगा। यही करेंगे। रुचि झा, यस रुचि सर, झा, यस सर। आपको आपको कोई काम दिया था हमने? आपको दिया था हमने नो कोई काम? सर, नो सर। आपको कोई काम नहीं दिया था? अच्छा ठीक है, तो इन पे अगर अनिल अग्रवाल जी पे आप ही बनाइएगा पूरा PPT। यस सर, ठीक है, यस सर, यस सर। ओके, सर हाँ बोलो। सर अब JRD डाटा पे करते हैं सर। चलो, किसी ने बनाया क्या? दुर्गेश तुमने बोला है Yes, बनाया क्या? sir. तो अंकित बन दुर्गेश, रहा है। चलिए दुर्गेश आप स्टार्ट कीजिए उसको, आपको होस्ट बना रहे हैं हम। दुर्गेश, दुर्गेश अभी आप होस्ट हैं, ओके फाइन। हेलो दुर्गेश, यस सर, यस सर, यस सर। प्लीज शेयर समथिंग।
देखिए जैसे दो कंसेप्ट है ना, बात समझिएगा। जैसे जेआरडी टाटा है ना, वो ऑब्वियस है, ऑब्वियस मतलब उन लोग का नाम स्थापित है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। हम लोग को उनके बारे में बात करना है। दुर्गेश अपना कंटिन्यू करो। एक मिनट सर, हम ऐसे नेटवर्क। ठीक है, हमको उनके बारे में बात करना है जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। अब ये नाम जानते ही नहीं थे हम लोग, ठीक है ना। इरफान नहीं जानते थे, कौशल नहीं जानते थे, अनिल अग्रवाल नहीं जान रहे हैं, ठीक है, बहुत से सब नाम नहीं जान रहे हैं। जेआरडी टाटा को पूरा दुनिया जान रहा है, वो ऑब्वियस है। ऑब्वियस के बाद जो लोग हैं ना उनको जानना जरूरी है। ये बात समझ में आई क्लास? Yes, sir. Yes. जो नाम चर्चा में है बहुत, ये सब उसको ऑब्वियस कहते हैं, ठीक है, वो लोग हैं अपोज। उनके अलावा भी और लोग हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, चलो शुरू हो जाओ। गुड, बेस्ट ऑफ लक। So, good morning everyone. Today we talk about a famous person, J.R.D. Tata. He was not only a businessman, rather than he was a true nation lover person. The full form of the J.R.D. is Jahangir Ratanji Bhai Tata. The short form is also famous for his name थोड़ा J.R.D. जोर से Tata. बोलो ना दुर्गेश, थोड़ा जोर से बोलो ना, तुम्हारा बड़ा सर, मोनोटोनस होता है बोलना। नेटवर्क नहीं चलता। अरे यार अंकल, तुम नेटवर्क का ना, जैसे वो बोलते फ्रंट कैमरा खराब। अब देखो कितना झूठ बोलते हो तुम लोग, ठीक है। फ्रंट कैमरा खराब है तो सेल्फी कैसे ले रहा है भाई? झूठ बोलने का लिमिट होता है, झूठ बोलने का लिमिट है, ठीक है। तो हम लोग जानते हो, अब क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग जानते हो बाय बर्थ जो ना बाय डिफॉल्ट करप्ट है यार, हम लोग बाय डिफॉल्ट करप्ट है। नो सर। ठीक है, नो सर नहीं बाबू, ये बात को मानो। अरे बाबू पूरा दवाई खरीद करके होल्ड कर लिया ना सब लोगों ने, सिलेंडर कर लिया ना, आप अपना अपना सोचा ना, इसी को तो करप्शन कहते हैं। हम लोग बाय डिफॉल्ट करप्ट, समझिए बात को। यूनिटी है सर सब में। यूनिटी है वो तो बाबू दशकों से नहीं है, वो तो कभी रहा ही नहीं इंडिया में। क्या बात कर रहे हो, वो तो कभी नहीं रहा, आज तक का इतिहास है, तो साबित कर देंगे। चलो शुरू हो। Yes, sir. He is born in 29 July 1904 and died in 29 November 1993. His father is Ratanji Tata, was a businessman. He do a lot of work to growth for a Tata Industries. He joined the बेसिक एजुकेशन फॉर स्कूल इन फ्रांस, जॉनसन डे दिल्ली स्कूल में उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन शुरुआती पढ़ाई की वहाँ पे फ्रांस में, क्योंकि उनकी माता जी थे वो फ्रांस की थी, उनके माता जी जो थे वो फ्रांस का उनके पास नागरिकता था, और उनके पापा जो थे वो इंडियन थे। 1923 में जेआरडी जो है वो लंदन गए थे अपने हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। वो वहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा रूल था कि जिनकी एज 20 साल से कम की होगी वो वहाँ से इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए उन्होंने जो था वो जेआरडी ने 1 साल पर फ्रांस के मिलिट्री को ज्वाइन किया था, जिनके कारण उनका जो था वो कैम्ब्रिज में वो एडमिशन नहीं ले पाए थे, क्योंकि वहाँ से उनको फिर बाद में मिलिट्री से परमिशन नहीं मिला था। वो 1925 में जेआरडी ने जो था वो टाटा 1925 में जो था वो सर जेआरडी ने टाटा को ज्वाइन किया था एज ए ट्रेनी के रूप में ज्वाइन किया था, वो इंडिया वापस आ गए थे। 1926 में सर उनके पापा का जो था वो पिताजी का देहांत हो गया था ड्यू टू लंग्स कैंसर के कारण, और उनके पापा जो थे वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, टाटा कंपनी को बढ़ाने के लिए जो था वो काफी ज्यादा उन्होंने लोन लेके रखा हुआ था, जिसके कारण से सारा प्रेशर जो था वो लोन का अब इनके ऊपर आ गया था। और एक टाइम ऐसा आया कि सर इनको अपना घर तक बेचना पड़ा था अपने पापा का लोन चुकाने के लिए, ऐसा बोला जाता है। 1930 तक में जो थे वो जेआरडी को जो था वो कहा जाता है कि वो ऐसे पहले देश के नागरिक थे जिनको जो था वो एयरलाइन से यानी फ्लाइट का जो था वो पायलट का जो था वो
अप्रूवल मिला था देश का, पहला ऐसा नागरिक था जिन्होंने उनको देश का अप्रूवल मिला था, और ये परीक्षा उन्होंने सिर्फ 12 दिन का ट्रेनिंग के बाद ही उनको मिला था। 1900 जेआरडी को एयरलाइन कंपनी शुरू करना चाहते थे 1930 में। उससे पहले 1930 में उनका ऐसा हुआ कि टाटा के जो करंट चेयरमैन थे जेआरडी से पहले, उनका देहांत हो गया था। तो 1930 में जो था वो टाटा कंपनी के चौथे सीईओ के रूप में या चौथे मैनेजर के रूप में जेआरडी को जो था वो टाटा कंपनी का मैनेजर बनाया गया था। जेआरडी को फ्लाइट उड़ाना काफ़ी पसंद था, जो उन्होंने पहले बनाया, तो वो चाह रहे थे कि एक एयरलाइन कंपनी की शुरुआत करना चाह रहे थे, और उन्होंने इसके लिए टाटा हेडक्वार्टर में अपना प्रपोजल भी रखा था। लेकिन उनको शुरुआत में उनका प्रपोजल जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया। पर कुछ टाइम के बाद देखा उन्होंने टाटा के जो हेडक्वार्टर्स में, तो उन्होंने देखा कि कुछ यंग जनरेशन कुछ करना चाह रही है देश में, तो कुछ टाइम के बाद उनके इस प्रपोजल को जो था वो मंजूरी दे दिया गया था। और काफ़ी मेहनत के बाद 1932 में जो था वो टाटा एयरलाइन शुरुआत किया था जेआरडी ने। ऐसा माना जाता है कि जेआरडी ने जब कंपनी का चेयरमैन बनाया गया था, तो उस टाइम टाटा का मात्र 19 कंपनी था, और उन्होंने जब वो रिटायरमेंट हुए थे उस टाइम कंपनी की संख्या बढ़ के 95 हो गई थी। उन्होंने अपनी मेहनत अपने तरीके से उन्होंने 19 से 95 नहीं, किया एक था। बार ये बात को फिर से बोलो, क्लियर नहीं आवाज आई, फिर से बोलो कितना नंबर था और सर कितना हो गया था? सर जब उन्होंने सर एज ए चेयरमैन के रूप में टाटा कंपनी में ज्वाइन किया था, जब उनको ज्वाइन किया गया था, उन्हें एज ए चेयरमैन बनाया गया था टाटा का, तो उस टाइम सर कंपनी की संख्या मात्र 19 था। लेकिन जब वो 19? रिटायर किए 19, यस सर, जब वो रिटायर हाँ। किए थे उस टाइम टोटल संख्या बढ़ के सर 95 हो गया था। मतलब उन्होंने कंपनी को बढ़ाया और नया नया कंपनी बनाया, खोजा, यस सर, XYZ, है ना? यस सर, चलिए कराया। ठीक और है। उनके कार्यकाल में मेहनत के दम पे सर, उनका जब वो ज्वाइन किए थे उस टाइम टाटा का टर्नओवर मात्र 70 करोड़ का था, लेकिन जब वो रिटायर किए तो टाटा का टर्नओवर बहुत बढ़ा दिया था, और उन्होंने जाते जाते कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ तक लेके गए थे। बस सही है, गुड। काफी मेहनत के बाद 1932 में सर वो टाटा एयरलाइंस की शुरुआत किया था। जो उन्होंने सर समाज सेवा करना चाहते थे, वो समाज सेवी थे सर, वो ट्रू नेशन लवर थे। उसके लिए सर उन्होंने 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस खोला था उन्होंने, जिसके सेवक वो समाज सेवक को तैयार करना चाहते थे, मैनेजमेंट के लाइन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को तैयार करना चाहते थे, जो बिजनेस में आगे चल के देश के लिए काम है। 1938 में टाटा ने एक चेयरमैन जो था वो सफलता अचानक उनके 1938 में जो था वो के बाद जो था उन्होंने फिर से एक स्थापना किया था। उन्होंने केमिकल कंपनी की शुरुआत की थी, वहाँ पे केमिकल कंपनी की शुरुआत करना चाहते थे, तो चाहते थे। माइक को एडजस्ट करो ना, ठीक रखो ना यार, तुम्हारा हम लोग को बहुत हाँ, स्ट्रगल लग रहा है सुनने में। तो सर माइक को ईगो ठीक कर रखो। रहा होगा। ओके, हेलो, कंटिन्यू कंटिन्यू। यस सर। 1939 में उन्होंने जो था वो टाटा केमिकल की भी शुरुआत किया था, क्योंकि उन्होंने देखे थे कि देश में जो थे वो दवाई कंपनी देश में जो था वो मेडिसिन को बढ़ावा देना चाह रहे थे वो उस टाइम। तो उसके लिए उन्होंने 1938 में जो था वो उन्होंने केमिकल कंपनी की भी शुरुआत की थी। इसके बाद 1941 में उन्होंने कैंसर के लिए टाटा मेमोरियल की भी स्थापना किया था, जो कि कैंसर का इलाज में काफी ज्यादा हेल्प करता था। वो गरीब लोगों को वो कैंसर का इलाज फ्री में करवाते थे। 1948 में एक जब सेकेंड विश्व युद्ध खत्म होने को था, उसके आसपास जो थे, होमी भाभा, वो कुछ कारणवश वो इंडिया में फंस गए थे, तो उसको लेके उन्होंने जो था वो होमी भाभा के साथ 1948 में जेआरडी में एक मीटिंग रखा, और उन्होंने कहा कि आप जो काम अपने देश में जाके करेंगे वो आप काम यहाँ भी रह के कर सकते हैं। 1948 में उन्होंने होमी भाभा के साथ मिलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया था, जो कि आज भी विज्ञान के क्षेत्र में काफी ज्यादा भारत को वो ग्रो करने में हेल्प किया है। उसके बाद 1948 में जेआरडी ने जो था वो टेल्को कंपनी बनाई थी, जो कि लाइसेंस के कार वैन इत्यादि बनाते थे। कुछ ऐसा हुआ कि 1946 में टाटा जो एयरलाइन कंपनी शुरुआत किया था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और उसका नाम बदल के एयर इंडिया रखा गया था। और जिसके कारण सर इसे सर जेआरडी टाटा को काफी दुख हुआ था, उन्होंने एयर इंडिया को दुख हुआ था। बट फिर जो था वो अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज चल रहा था कि टाटा कंपनी जो है वो एयर इंडिया जो है वो बिकने वाली है, और टाटा कंपनी उसको जो है वो खरीदने वाला है। 1952 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, तो उस टाइम इंदिरा गांधी के साथ टाटा ने जेआरडी टाटा ने मीटिंग किया था, और उन्होंने बोला था कि देश में जो होते हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, देश में उनकी कमी हो रहा है, या हम उसको इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको लेकर जेआरडी टाटा ने था वो देश की सबसे पहले ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी जो थी लैक्मी था, उसका भी शुरुआत इन्होंने ही किया था। और उसके बाद जेआरडी टाटा का ये मानना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजदूर के दम पे ही चलता है। आप अगर मजदूर को आप सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए अगर रूल और रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, तो अगर उनको आप सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो वो मजदूर के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाता था।
और उन्होंने जो था वो इसके लेके बहुत सारा काम किया था। उन्होंने बहुत सारे मजदूर के लेकर उन्होंने कंपनी में लॉ बनाए थे। उन्होंने काफी ज्यादा जो था वो हेल्थ, मजदूर के हेल्थ पे ध्यान दिया। टाटा ऐसा पहली कंपनी था जिसने देश में सबसे पहले मजदूरों के लिए हेल्थ सिस्टम लागू किया था। और बाद में गवर्नमेंट ने जो टाटा ने जो मजदूरों के लिए रूल रेगुलेशन बनाया था जेआरडी टाटा के अंदर में, उसको धीरे धीरे भारत की हर कंपनी ने एक्वायर करना शुरू कर दिया। और यही रीजन था कि 50 साल तक पूरे भारत में टाटा एक अकेली कंपनी ऐसी है, या फिर हम वर्ल्ड में कह सकते हैं टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसमें 50 साल तक मजदूर दुनिया में कोई स्ट्राइक नहीं हुआ। 50 साल से स्ट्राइक नहीं हुआ, अच्छी बात है, ठीक है। स्ट्राइक नहीं हुआ। और बात करेंगे तो टाटा जो है वो आजकल जो है वो वर्ल्ड की 11th सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी। 1977 में देसाई जी का जब गवर्नमेंट हुआ था तो टाटा को जो था वो वहाँ की टाटा के एयरलाइंस के पद से वहाँ से उनको हटा दिया गया था। उनको लेके जो था वो, और बाद में इसको लेके टाटा जो था फिर से जब वापस इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी ने टाटा को जेआरडी टाटा को जो था वो चेयरमैन बनाना चाह रहे थे, बट उन्होंने उस टाइम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। और टाटा का ये जेआरडी टाटा का ये मानना था कि उन्हें इंडिया जो है वो पॉपुलेशन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्लान्स तैयार किए, बहुत सारे जो था वो उन्होंने नीति तैयार किया जो उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट किया, बट कुछ उनके एक्सेप्ट हुए और कुछ जो थे वो उनके नहीं हुए। 1991 में सर जेआरडी टाटा ने रिजाइन कर दिया था और रतन टाटा को उस टाइम कंपनी का चेयरमैन बनाया गया था। और उनको जो था वो बात करेंगे तो इस बीच में उन्होंने काफी ज्यादा अवार्ड भी उन्होंने विन किए थे। अगर हम बात करेंगे तो उनको जो थे वो फ्रांस से लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला था उनको। तो फ्रांस की फ्रांस से राष्ट्रपिता के सब फ्रांस से लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड, विजन ऑफ ऑनर, अच्छा। यस सर, जो कि फ्रांस की राष्ट्रपिता का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, उनको ये भी हम्म। दिया गया था। उनको भारत रत्न भी दिया गया था सर। इसके बाद और बहुत सारे अवार्ड थे उन्होंने जो था वो दिया गया था। उन्होंने सर हाँ, वो डायरेक्ट अवार्ड जब, तो इनके पास बहुत है, अरे ये खुद यस एक सर, अवार्ड है। और 1991 में जब बोला जाता है कि ऐसा डेथ किया था तो उस टाइम जेआरडी टाटा देश के पहले ऐसे शख्स थे जिनके मरने पे जो था वो संसद भवन को बंद किया गया था, ऐसा माना फिर से जाता बोलो, था। इससे फिर से पहले बोलो। नहीं नहीं, बोला जाता है आवाज कि नहीं सब आई। जब जेआरडी टाटा जी सब जब मरे थे 29 नवंबर 1993 को, तो उनके हाँ डेथ पे इंडियन पार्लियामेंट को पहली बार देश में एडजॉइन किया गया था। हाँ। देश में ऐसा पहली बार हुआ था 1993 में जब किसी के मरने पे इंडियन पार्लियामेंट को जो था वो एडजॉइन किया गया था। और सर ये कुछ उन्होंने जो मजदूर के लिए रूल्स बनाए थे, ये कुछ रूल्स हैं जो हर दिन सिर्फ 8 घंटे का काम होगा, फ्री मेडिकल सुविधा होगी, प्रोविडेंट फंड की सुविधा, एक्सीडेंटल कॉम्पेंसेशन हो जाएगा। उन्होंने 1956 में जो था वो मजदूरों के लिए बदला किया था। और ये उनका अवार्ड जो भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था सर 1992 में। इसके बाद उन्होंने परिवार नियोजन जो मैंने बोला था वो बोल रहे थे कि देश के पॉपुलेशन काफी बड़ी समस्या होती है। यही सब सर उनके बारे में कुछ। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड दैट की कंटेंट तो तुमने अच्छा बोला, सब कुछ है, लेकिन एक तुम्हारा इतना बुरा गड़बड़ है ना, तो जो बोलते हो उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन है ये नहीं है, ठीक है। पहले स्टॉप शेयर करो और बात को तफसील फातिमा को होस्ट बनाओ। सर वॉइस सर मॉड्यूलेशन मतलब? अरे भाई, उतार चढ़ाव नहीं ना है, एक के मोड में बोलता चला जाता है, एकदम लगता ना बेहोश हो जाएगा आदमी। इसमें लाइट मोड मॉड्यूलेशन में नहीं ना बोलता है। है। अरे कभी जोर से बोलना है, कभी धीरे बोलना है, ऐसे वॉइस मॉड्यूलेशन है अच्छा ना। सर, वो टोन में चेंजमेंट सर, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एक ही टोन में एकदम सीधा चला गया। सर हो गया, आप होस्ट बन गए सर। अरे बहुत मेहरबानी आपने हमको वापस से मेरी गद्दी दे दी, नहीं तो कोई जनरली कोई देता नहीं है, कुर्सी एक बार मिलता है तो देता है। हाँ, खैर, लेकिन ना दुर्गेश ना, सब कुछ अच्छा है यार, लेकिन इस पे तुमको काम करना ही पड़ेगा, तुम नहीं समझ रहे हो बात को। पता चला कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रहे हो और सब लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं, ठीक है, तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जी। सर वो आवाज में सिक्के जैसी खनक होनी चाहिए सर, तो वो सुन के कोई जाग जाए। तो इसको सिक्का दो चाटो खिला दो, इसको दो चाटो सिक्का खिला दो। चलो 1 मिनट होल्ड करो, हमको जल्दी जल्दी अटेंडेंस बता दो। यस सर। क्या है ये? चलो BBM PPU 445, हाँ फर्स्ट। रोल नंबर 4 सर। 4 8 4 6 8 और बोलो जल्दी जल्दी। 12 12 सर, हाँ 12 हो गया।
13, 13, 19, 19, 7, 7, 9, 7, 9, sir, 9, 26, 21 or 26. 21, 26, 23, sir, 23, और 28, sir. 21 तो नहीं है 21 नहीं है. ये था चलो, क्लास में, उसका नेटवर्क चुप प्रॉब्लम रहा हो झूठ गया। बोलते हो 21 कौन है? मैसेज आया था। अब्दुल अब्दुल नहीं 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 है सर, नहीं है सर. अरे था, 16 अरे क्लास में था। चलिए ठीक है। 26 के बाद कितना है? 28 है। यस सर. 16 सर 16 भी है। ठीक है, यस हो सर. गया। यस सर. चलिए, थैंक यू। थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।